when my mom told me कि पहले graduation complete कर लो और उसके बाद because she used to be she was a teacher so you're from a small town and because this industry is nasty and you never entertain stupidity, maybe that's how like people perceive, but I didn't go anywhere and ask for work, to be honest. To be very honest, like social media became a blessing for me. In my teenage, I was doing a lot of modeling shoots in Delhi. Extremely ambitious. Okay, I was extremely ambitious. You know, और मैं आज भी उन लोगों से जुड़ी हुई हूँ. The best part is that album जो था Sexy Saiya, so much of love to be honest. Like मुझे लगता है sometimes you know I don't, मेरी journey बहुत अलग है और दूसरे लोगों की journey कहीं. मुझे depression नाम की चीज बहुत ज्यादा पता नहीं है. Yeah. So, welcome. Thank you so much. Thank you so much. Yeah, I was looking forward to having this interview with you for a while. So you had some issues earlier. So thank you so much for giving us this time. Oh, no worries, no worries. It's all my pleasure. Let's get started. So tell us about your childhood. How was your childhood like? Childhood was not so great actually because I was the only sister and I had two brothers. We were just studying, no extracurricular activities at all. So it was all like, you know, it was only about studies. So it was only about like grades. If you'll be getting this much grades, then you'll be getting this. And the promises were totally false. They were never ever fulfilled actually. So childhood was like average, very, very average because I belong from a very, very, very small town. That's called Gwalior. Gwalior is that was my next question. So Gwalior has become bigger now, but it was quite a very small town at like, you know, the like 10 years or 20 years before. So it was very different. So like, you know, the girls have loads and loads of restrictions at that time. So it was totally about like, you know, you have to be inside, you can't go out like if it's like, you know, little sunset or so. So there were like so many restrictions. So we were just allowed to go only with our brothers and, you know, fathers and everybody. We were not allowed to go to our friend's place. We were not allowed to do a lot of things. Like obviously you must be knowing about the girls' restrictions and everything. So I mean, when it comes to those parts, I mean, I literally feel like that, you know, it should not be like that because I already had a very much, you know, broad mentality in my childhood as well, and I always used to think like, you know, whenever I'll grow up or so, I would try to, you know, let all of these just go. So I mean, you know, I think the way I thought about it in my childhood, the way I just completely perceived. There was one interesting thing that I got to know today. You come from a small town and you got into the entertainment industry. How is the entertainment industry like? To be honest, when I just got into it, everybody just, you know, scared me with loads and loads of different mentality and, you know, about their perception that, you know, you're from a small town and don't think that, you know, you'll be able to make it, and you don't do parties, you don't entertain people. So I think you should not be part of this, and you should just go and get married to somebody, and, you know, that this is how you're going to be, because this industry is nasty and you should just stay away and all of that, obviously, right? So, is it nasty though? I think so far so good, to be honest, because I think it depends on a person as well. Because I never entertain stupidity. Maybe that's how like people perceive you. It's very simple. Like, you know, if your mouth publicity, I should say, or maybe, you know, the one-on-one, if people, however you want people to know about you, I think this is how people take it. So now I get to know, like, you know, people know me only because of my professionalism, that I am professional to the core. So now people just, you know me in that way, that, you know, oh dude, I think you should just, you know, watch out your words because she's extremely professional and she's like, you know, very particular about things. So so I think that's how people perceived it. Initially I think it was very nasty for me. But I didn't go anywhere and ask for work, to be honest. It was simple that, you know, through mouth publicity, a lot of work came to me. And through social media, things came to me. And to be honest, like, I would say one thing, that people say that social media is a nasty place and social media is such, you know, I mean, wrong things and negative things, and negativity comes through that social media. In my case, it was a totally opposite thing, because I was a very low self-worth person at some point of time before social media.
and after that, I became very much confident, and all my work through came only from social media. People just started watching my videos. That's how they were giving me work. That's how they were giving me shows, and I started getting into the international shows and everything. So it all happened just because of social media only, in my case. So for me, it's a blessing, to be very honest. Like, social media became a blessing for me. Yeah. So I actually saw your video. I think it was last year during World Cup. I think India Pakistan World Cup. Before that, I saw that video. So I got to know you then. Like, wow, it's been a long time. Yeah. And I got to know a little bit more about you online, but like your name is Shivangi Sharma. There's another actress with the same name. So I was getting the same entry some serial artists. Some serial artists. Yeah. So I really loved that song. So personally, I really liked that song. I don't remember the lyrics as such. I really loved it. Yeah, right. Yeah. So I really loved it. It was the best part was it was simple, yet catchy. Thank you so much. Thank you so much. I did a lot of hard work for that. I think you didn't see the dress, actually, the costume. It was totally about like the badges of Indian, cricket team. The badges were all over that. Like the Indian cricket team, and I chose the color, the bleed blue, and I tried to make it like little better, and the way, I look at things, like, I always believe in homework, okay? Right. So whenever I make anything, I give my 1000% to it, and it's just simple, like, So I just did that. Like, it takes a lot and lots of time just to make a, good outfit, first of all, a catchy outfit. We made one more outfit of that as well, like, like a lot of World Cup related prints and everything, but somehow... Yeah, I saw that. Yes, I saw that. You might not have seen that. It was like very expensive outfit. At the same time, it was like, my director just asked me not to wear that just because I think he was supposed to do some sort of like, the VFX thing and all that. And he was saying that it won't work in that. So that's how I was not able to wear that. And I was literally, cursing him. I was saying, just because of you, I spent so much of money, and I spent like the outfit is awesome. Or maybe, I'll try that somehow in one of my show or so, and I'll definitely send a video or something out of it. But it was a damn good outfit. Yeah. So I do a lot of hard work, a lot of homework on my outfits. Right. How is Gwalior like in general? Gwalior is a completely historical place, and to be honest, like, I go there just once in a year. I stay in Mumbai, so I just go there for like, for Diwali. I think just hardly for Diwali. So I was there for Diwali, and this year, like, I did a lot of shoots at like Fort and other different historical places, which I always wanted to explore, and which I always wanted to show my audience as well, that it is such a beautiful and historical place. So this is how I like spend little more time comparatively this year, like maybe 4-5 days more or so. But it was a fun trip for me. Yeah. Well, I don't like Mumbai during, let's say, rainy season. So, not lockdown, but rainy season in general. Yeah. It's hard. Actually. Yeah, it's hard to move from one place to another. There's another thing which a lot of people asked me when I told them I'm taking your interview. So it was the most common question was what was let me just check once. Yeah, do it. Oh yeah. So what made you go into this entertainment industry or singing in general? Honestly, I used to sing from my childhood, but like, obviously my family was very conservative, and they were never ever agreed to it. So I'm working since I was 15, but not in this particular industry, because I was working in various departments, like somewhere as a receptionist, somewhere as an accountant, somewhere as a the CSR, the call centers, the call centers, and like so many other ones. Like, I think probably it took me like 4 years just to get the permission from my parents that I can go to Mumbai. So from 15, like, I started taking the permission. Okay, please let me go. And then finally they gave me the permission. So I came to Mumbai. But honestly, when I came to Mumbai, I had no idea what to do. So in my teenage, I was doing a lot of modeling shoots in Delhi. Okay, a lot of jewelry shoots and a lot of different just for the pocket money thing.
And that's how I got into it, because every time I used to ask, and trust me, I was extremely ambitious. Okay, I was extremely ambitious. I always used to used to be asking to people, okay, अभी क्या करना है, अब इसके आगे कैसे करना है, अब मतलब आपको क्या लगता है कि अगर मुझे इस चीज का ये करना है तो मुझे क्या करना चाहिए. तो लॉट ऑफ पीपल यूज्ड टू से दैट अगर इसी फील्ड में कुछ आगे करना है तो आई थिंक तुम्हें मुंबई जाना चाहिए, है ना. तो अभी वो slowly what happened, that finally I got to understand that is the only city where I'll get the recognition and where I'll be able to get the proper thing. Like एक मॉडलिंग होता है, छोटा वाला एक होता है प्रॉपर, बट स्टिल मुझे इतना आइडिया नहीं था कि व्हाट आई नीड टू डू एंड एवरीथिंग. सो इट टुक मी like almost like couple of days, and especially I should say कि when my mom told me कि पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लो और उसके बाद, because she used to be, she was a teacher, तो लास्ट ईयर चल रहा था बैचलर ऑफ कॉमर्स का, एंड शी टोल्ड मी कि ओके काम करते हैं, तुम पहले ये कर लो, उसके बाद में तुम 6 महीने के लिए जाना, कुछ होता है तो ठीक है, वरना वापस आ जाना, वापस आके टीचिंग की जॉब कर लेना. ओके, and I was like okay ठीक है, चलो इसी बहाने परमिशन तो मिली ना. So लास्ट ईयर कंप्लीट किया, जैसे ही हुआ फट से I came to मुंबई. बट उससे पहले मैंने बहुत कुछ ना अपने फ्रेंड्स बना लिए थे. दिल्ली में मैं बहुत सारे फ्रेंड्स से मिली थी जो कहीं ना कहीं मुंबई रहते थे, तो मैंने उनसे लिंक्स बनाए हुए थे. बहुत सारी स्लीपलेस नाइट्स थी उसके पीछे, क्योंकि मुझे सिक्योरिटी मनी एक होती है जो मुंबई में जब आप रेंट करते हैं कोई भी प्लेस को, तो एक सिक्योरिटी मनी लगती है, कुछ एक पर्टिकुलर सेविंग्स लगती है आपकी. तो वो मैं बहुत पहले से धीरे धीरे करके करी थी, सिंस आई एम अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड पर्सन. तो मेरे लिए ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड एट द सेम टाइम लकीली मुझे कुछ एक फ्रेंड्स बहुत अच्छे मिले जिन्होंने मुझे कुछ 15 दिन अपने घर में रख लिया, किसी ने 1 महीने अपने घर में रख लिया. तो वो धीरे धीरे करके ये बहुत अच्छा था कि मैंने जो पहले के लिंक्स बनाए हुए थे वो शायद मेरे काम आ गए. एंड एट द सेम टाइम मुझे ना स्टार्टिंग से लोग ये तो नहीं बोलूंगी सारे अच्छे मिले, अगर मुझे 100 लोग खराब मिलते थे तो वो 5 अच्छे, वो मैं 5 पे फोकस करती थी कि यार ये बहुत अच्छे हैं, चलो इनसे और मैं आज भी उन लोगों से जुड़ी हुई हूँ. द बेस्ट पार्ट इज दैट अभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि मतलब नाउ यू आर लाइक सेटल्ड इनफ एंड देन अभी उनको सो दे ऑल आर इन टच. एंड सो ऐसा हुआ. एंड देन उसके बाद में मैं अपने एक फ्रेंड को दिल्ली से जानती थी, हिज नेम इज असलम खान. Okay. So Aslam Khan was acting in that Nai Padosan movie. Right. Yeah. Okay. Yeah. So I knew him like I think वो movie शायद कुछ 2006 या 7 में आई होगी, शायद थोड़ा सा और पहले आई होगी. तो मैंने उसका फेस देखा हुआ था कि ओके ठीक है, ये कोई है. तो जब वो हम लोग किसी आई थिंक वाया किसी फ्रेंड के थ्रू मिले थे, तो जब मैं असलम से मिली तो असलम हैज अ वेरी पॉजिटिव वाइब्स. ओके, तो मैंने जब उसको बोला, मैंने कहा यार मुझे कुछ करना है, मुझे ये करना है, मैं मुंबई आना चाहती हूँ. देन ही वाज द वन लाइक ही वाज हाँ ठीक है तुम आओ, तुम मुझे कॉल करना, तुम्हें जरूरत पड़े तो आई एम देयर. तो एक और एड ऑन हो गया पॉजिटिविटी में, एक और एड ऑन हो गया मुंबई बुलाने के लिए. सो मैं जब आई तो फिर ऑब्वियसली असलम से भी मिली. वैसे तो मैं मतलब मुझे ऐसा लगता है मैं दिन में कम से कम 10 मीटिंग्स करती थी, मिनिमम 10 मीटिंग्स वो फिक्स. मैं सिर्फ घर पे सोने के लिए आती थी. आई वाज लाइक बैक टू बैक, कभी फेसबुक, कभी इधर से सारे डायरेक्टर सबसे इससे उससे सबसे मिलना था मुझे. सब लोगों की मीटिंग्स फिक्स होती थी. मतलब मेरा काम ही होता था, मैं कॉफी शॉप में बैठ के 5-5 घंटे, अभी एक के बाद एक मीटिंग. बट ऑनेस्टली अगर मैं अपने ग्राफ देखूं तो मुझे लगता है कि आई वाज एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग. मतलब इतना आसान नहीं होता है एक्चुअली हार्ड वर्किंग हो. तो मैं बहुत ज्यादा थी शायद. अभी मैं देखती हूँ कि मैंने इतना हार्ड वर्क कर लिया है, राइट. इतना पीछे जाके अगर देखें तो इतना सब कुछ हो गया. फिर मैंने फाइनली असलम को कॉल लगाया जब मुझे टाइम मिल गया. तो असलम से जब बात हुई तो असलम बोलता है अच्छा चलो नहीं कुछ करते हैं, तुम्हारे लिए कुछ करते हैं. तो वो सब करते आई थिंक ये बात बोलते असलम को कुछ 6-7 महीना हो गया था. तब तक मेरे ख्याल से मैं भी थोड़ा सा अपनी मॉडलिंग लाइफ में, क्योंकि मैंने मॉडलिंग शायद बैंगलोर, हैदराबाद, इसके लाइक बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, मेरे ख्याल से साउथ इंडियन प्रोजेक्ट्स भी बहुत सारे किए हुए थे. बहुत जो भी आता जा रहा था मैं सब कुछ करती जा रही थी, क्योंकि मुंबई को अफोर्ड करना वाज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर मी टू बी ऑनेस्ट. पहले इतना सा था, अभी बहुत सारी चीजें बढ़ गई थी, तो वो धीरे करके एक्सपेंसेस बढ़ते चले जा रहे थे, वो भी मेंटेन करना था. So anyways, I was like back to back कुछ ना कुछ जो आता जा रहा था, जिसका रेफरेंस मिलता जा रहा था, वो सब कुछ काम करती चली जा रही थी. एंड देन फाइनली असलम से फिर से मुलाकात हुई. तो मैंने उसको कुछ, मेरे ख्याल से अपना कुछ एक डेमो सुनाया जो मैंने बहुत पहले किसी शो के लिए, किसी एक इवेंट ऑर्गेनाइजर ने मुझे बोला था कि अच्छा तुम कुछ अपना एक कोई गाना रिकॉर्ड कर लो,
मुझे इंटरेस्ट था, लेकिन मुझे ना 2-4 लोगों ने बहुत खराब रिव्यू दिया था मेरे बारे में कि नहीं नहीं तुम्हें ऐसे होता है ना कभी, एंड वो दिल्ली की ही बात है, कुछ एक बोलते हैं कि नहीं नहीं बहुत खराब है और मुझे हमें नहीं लगता तुम्हें इस इंडस्ट्री में जाना चाहिए, तो मैं थोड़ी सी डिमोटिवेटेड हो गई थी। बट एनीवेज मैंने जो 1-2 गाने रिकॉर्ड किए थे, बाय द वे वो गाना जो रिकॉर्ड किया था वो दिल्ली में स्टूडियो था, जो मतलब मैं उसको नोनू नाम से जानती थी उस टाइम पे, बट उसका नाम है मिलिंद गाबा। Okay. Oh, right. That guy. Yeah. Milind Gaba. Okay. So I know him like from like कम से कम I think 11-12 साल से, और ज्यादा पहले से, शायद 2009 या 10 से maybe, right? So then we recorded like कुछ तो हमने 2-3 गाने, क्योंकि उनका स्टूडियो था तो मुझे किसी ने इंट्रोड्यूस कराया कि इनका स्टूडियो, इसमें 2-3 जो भी तुम्हें गाने रिकॉर्ड करने कर लो। तो अब जब रिकॉर्डिंग हो गई सारी चीजों की, तो वहां से 2-3 गाने मिले, एंड देन उसके बाद में वही सॉन्ग्स मैंने मिलिंद भी मुझे बोलता था यूजुअली कि यू नो दीज आर वेरी नाइस सॉन्ग, और एक तो आई थिंक टच मी किया था, एक लकी बॉय किया था, एक इट्स रॉकिंग किया था, इट्स रॉकिंग, ओके, तो ये री रिकॉर्ड किए हुए थे। सो एनीवेज लाइक ही ऑलवेज यूज्ड टू से कि नहीं नहीं तुम्हारी आवाज अच्छी, तुम्हारी, बट मुझे लगा हो सकता है कि यू नो फ्लर्ट कर रहा हो या कुछ भी एट दैट टाइम। वही लगता था, क्योंकि वो भी he was also like a teenage. We just got a promotional clip thanks to you. Might be. So so what happened then, finally what like उसके बाद में मैंने finally असलम को वो गाने सुनाए, एक सुनाया actually, and Aslam said to me very clearly, he is very honest guy, he told me, see, it's not extraordinary but it's not that bad too, तुम अगर इस पर काम करना चालू करोगी ना तो हो सकता है। मैंने कहा काम करना मतलब क्या, मतलब मैं तो यहाँ पर देखती थी जिसको वो क्लासिकली ट्रेंड होते थे सारे लोग, तो ये टोल्ड मी कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, अगर तुम इस पर अभी अपने वोकल्स पे थोड़ा थोड़ा काम करना स्टार्ट करोगी तो डेफिनेटली इट माइट वर्क इन अ बिग वे, और वैसे भी तो हमें इवेंट्स करना है, क्योंकि मुझे ना इवेंट्स बड़े फैसिनेट करते थे एक टाइम पे, मुझे लगता था काश इवेंट्स, तो ही टोल्ड मी वेरी क्लियरली, से अगर तुम अभी इवेंट्स में जाओगी तो मैं कोई 5,000 से कुछ ऊपर नहीं देने वाला है, एक पहले ब्रांड बनाओ, उसके बाद में करना, उसके बाद में तुम्हारा एक म्यूजिक एल्बम लॉन्च करते हैं ये वो। एंड आई सेड यार आई डोंट हैव मनी, कम ऑन, मतलब हम म्यूजिक एल्बम कहाँ से बनाएंगे। देन ही टोल्ड मी ओके ठीक है थोड़ा वेट करो, मैं देखता हूँ अगर मेरे सर्कल में, क्योंकि उसके सर्कल में प्रोड्यूसर्स वगैरह आते रहते थे स्मॉल टाउन से और सारी जगह से, सो ही कॉल्ड मी लाइक आफ्टर 6 months और सो, एंड ही टोल्ड मी कि ओके फाइनली आई गॉट समबडी, बट उसका पे बैक तुम्हें जो करना है वो कुछ अपने शोज के परसेंटेज से करना, ही कैन डू दैट, बट वो आपको शोज में परसेंटेज में वापस करना पड़ेगा। सो वी मेड अ प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट और समथिंग, एंड देन उसके दैट्स हाउ इट हैपेंड। एंड फर्स्ट एल्बम जो था सेक्सी सैया, and it was launched by Anis Bazni sir and Aslam, तो obviously कि मुझे लगता है कि मेरे एल्बम का जो पूरा क्रेडिट जाता है वो असलम को जाता है, क्योंकि मैंने शायद सिर्फ जाके गाना गा दिया होगा, बट ही वाज द वन जो पोस्ट प्रोडक्शन में बैठता था, एडिटिंग में बैठता था, सारी चीजों में बैठता था, तो ही इज अमेजिंग फॉर मी टू बी ऑनेस्ट लव। सो या मैंने आपका वो देखा भी था न्यूज़ आर्टिकल, असलम सर एंड यू एंड द होल कास्ट एंड एवरीथिंग। Oh yeah, I saw it. It is there on the Google, right? Yeah, it's on Google. So ये तो चलो आपने अपनी जर्नी मेरे को बता दी, तो एक चीज और है कि व्हाट मोटिवेट्स, तो जल्दी से डिमोटिवेट हो जाते हैं, स्पेशली यंगस्टर्स who are passionate about either entertainment or sports, anything which is not education related. Because family का भी आप जैसे कह रहे हो ना, प्रेशर तो होता है, because they want their children to have something in life. Absolutely. I think there are 2-3 things. First of all, मेरा जो पर्सनल, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कंपटीशन किसी से है नहीं, वो इसलिए क्योंकि मेरी जर्नी बहुत एक्सट्रीमली डिफरेंट रही है, और अगर मैं अपने आप को किसी से कंपेयर करती हूँ कि यार देखो ये इंसान तो ये कर रहा है, मैं ऐसे कर रही हूँ, तो मुझे लगता है सबसे पहले तो आप आधा वहीं अपने आप को डिमोटिवेट कर लेते हो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैंने कितना स्ट्रगल किया हुआ है, तो मेरी जर्नी बहुत अलग है और दूसरे लोगों की जर्नी कहीं, तो मैं जहाँ कल थी वहां से आज मैं बहुत 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 बेटर हूँ, तो जो मैं कल कर रही हूँ उससे बेटर मैं आज करूंगी, जो मैं आज कर रही हूँ उससे बेटर मैं कल करूंगी, तो मेरे कोई रूल्स नहीं है, इट्स वेरी सिंपल, जो एवरी डे इज लर्निंग फॉर मी, हर इंसान से सीखो, हर चीज से सीखो, हर सिचुएशन से सीखो, और एवरी डे से सीखो, इट्स सिंपल। एंड आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि शायद बहुत कुछ नेगेटिविटी आपको वर्कआउट जो होता है, जो मुझे लगता है कि जब हम रनिंग करते हैं या जॉग करते हैं या तो कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, वो भी बहुत कुछ काम करता है, क्योंकि मेरे केस में क्या होता है कि अच्छा आई डोंट नो वेदर आई शुड से दिस और नॉट, मुझे डिप्रेशन नाम की चीज बहुत ज्यादा पता नहीं है, क्योंकि मेरे लिए वो डिप्रेशन सिर्फ 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए आता है, उसके बाद में मैं उठती हूँ एंड वो जो एक आता है ना अंदर से, बस अब
चकते फट्टे टाइप्स, है ना, वो एक सिचुएशन आती है। तो मेरी उसमें डिक्शनरी में कहीं पर भी डिप्रेशन नाम का वर्ड नहीं है, क्योंकि वो 1 से 2 घंटे थोड़ा एक अजीब होता है, कुछ नहीं है, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है। Right. और मोस्ट इम्पोर्टेंटली एज आई टेल यू कि लकीली क्या है कि मेरा सोशल मीडिया इज वेरी पॉजिटिव, मतलब मुझे शायद ही हेट कमेंट्स आते होंगे, और जो मैंने भी देखा वो, मेरे को भी सरप्राइजिंग लगा। जनरली पीपल पुट नास्टी कमेंट्स डाउन। मेरे में नहीं होता, मेरे में लकीली अच्छी बात ये है कि शायद वो भी मुझे एक मोटिवेट करने का, एक रखने का एक बहुत बड़ा एक जरिया है, क्योंकि मुझे हेट कमेंट नहीं आते, अगर आते हैं तो मुझे पता होता है ये किसने किया है, मुझे पता रहता है कि ये किसी का एक वो होता है ना कि जब आपने किसी को अटेंशन नहीं दिया तो somebody is trying to defame, grab your attention। वो मुझे बहुत क्लियरली पता होता है। तो मुझे लेकिन इन जनरल मुझे कभी हेट कमेंट्स नहीं आते, व्हिच इज लाइक मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, वो मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग है। या दैट इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग, क्योंकि मैं नाम नहीं लूंगा, किसी एक्टर का मैं लाइव फीड देख रहा था, सो आई सॉ रियली नास्टी कमेंट्स डाउन देयर, सॉर्ट ऑफ मतलब starting from are you a virgin to God knows क्या, and I think I have that much respect for celebrities for that, they do a live thing and they don't look at those things, they have that positivity on their, that is the biggest thing takeaway for me as a normal person. It is the big thing. It's a very big thing. Yeah. And in that condition also, like if you're like keeping yourself very much positive, if you're not looking at the camera, if you're not looking at the the screen, I think that's the best thing you can do. And मेरे केस में तो वैसा नहीं होता, मैं तो कंटिन्यूस स्क्रीन पे लगी रहती हूँ, अच्छा आप क्या ना, मैं because I reply a lot on my I saw your YouTube live as well, तो उसमें भी you are replying to people's answers. I do. Yeah. And people know me for that only, to be honest. Like I reply to general people, so that's how I like it, and I get so much of love. To be honest, like मुझे लगता है sometimes I don't know, like कुछ बोलते हैं ना कि आप डिजर्व करते हो नहीं करते हो, बट मुझे बहुत प्यार आता है। तो मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन ही सोशल मीडिया है, सारा का सारा सोशल मीडिया, एंड पीपल लाइक कनेक्ट। अच्छा, पीपल कम एंड गो, वो चलता रहता है, एंड देयर आर सो मेनी पीपल who's there like from last 7 years, 8 years, 9 years, it is so beautiful. So it's a blessing for me. Yeah, people who advised you, I think the right thing probably to say. No, it's not. It's nothing like that. It's not. People advised me very wrong things as well. It's just simple that the moment I feel that the person is trying to demotivate me, trying to misguide me, I just leave those people there, then and there, and I move on. It's nothing like that. No, people came across in my life also, like they gave me so many bullshit. They told me so many wrong things. ऐसे कर लो, ये नहीं होगा, तुमसे ये नहीं हो सकता, तुम्हारा ये नहीं है, अब तुम कोई श्रेया घोषाल नहीं हो, blah 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 blah, right? But it was like my own choice कि मैं ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में रहने नहीं देती. It's simple. देखो अभी क्या है कि आप चाहो तो नेगेटिविटी आपके पास में बहुत सारी आ भी सकती है, बट आपको ये आपके ऊपर डिपेंड करता है that आप नेगेटिविटी को कितना एंटरटेन करते हो. That is also very important. So I don't entertain negativity at all. It's simple. मेरा लाइफ का फंडा बहुत क्लियर है, ना नेगेटिव लोग चाहिए, ना नेगेटिविटी चाहिए, so that you can just keep yourself like very much focused. आई थिंक उसके लिए क्या, मुझे कोई रूल नहीं पता टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मेरे साथ में क्या हुआ कि मैंने जो अपना फर्स्ट शो किया, मुझे शायद इतने बड़े स्टेज पे डाल दिया कि मेरे पास में स्ट्रॉन्ग होने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था टू बी ऑनेस्ट। मतलब या तो ऐसा हो सकता था कि वहां से वीडियोस बन के दूसरे लोगों पर जाते और मतलब बॉयकॉट हो सकता था कि यार शी इज सच अ डिजास्टर वन, तो वो होता है ना कि नहीं अरे इसको शो मत देना, इसको, वो भी एक सिचुएशन आ सकती थी, बट मुझे अब उससे ओवरकम करना है तो मुझे अच्छा करना ही पड़ेगा। सो इन दैट केस आई परफॉर्म्ड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम वेयर इन लाइक ऑल दी शकीरा, बियॉन्से and Ricky Martin and all these people came in Udaipur. एक place है called Jag Mandir. Jag Mandir is such a I mean that is probably India's one of the finest and most expensive place. That's in the middle of the lake. Okay. तो वहाँ पर परफॉर्म किया था मैंने, और वो भी परफॉर्म किया था तो राहुल वैद्या के साथ किया था। राहुल वैद्या used to be my crush. Okay. Yeah. He used to be my crush since my I shouldn't say childhood, but yeah, teenage crush था.
And I have told this to Rahul, like in my interview, like when I was taking interview of Rahul, and we were just in the conversation, because I don't give those sort of vibes to somebody that you're a, because we were already working, so I couldn't give those vibes that you're my crush and blah blah blah. So yeah, so when I told him, and he told me, he was like, you never told me that I'm your crush. I said, yeah, I mean, not necessary that you need to, describe and, say everything out and loud. So he was like, yeah, that's a great. But this is the very first time when you're expressing about yourself. I was like, yeah. Somewhere. So, who was this one person in your life who had, pushed you through those dark times? क्योंकि कोई एक बंदा चाहिए होता है जिससे you can share your negative feeling, or you can just simply say, यार, it's not working for me, what should I do? Main person is like, I stay with my younger brother. So he's the one, like a lot of times it happened that, I was completely demotivated and I was like supposed to cry, and I was saying, nothing is happening, everything is not working out. And I was like, trying for the international shoots and everything. And he was like, but you're not the one who can just sit and talk and like do like this. Just stand up, work out, do something, and everything is sorted. You're not the one like, who just came from a small town just now. Okay, it's been quite a long time, and you can't just sit like this. People idolize you. We idolize you. Okay. Yeah. So I think he's one of them. And second, my teacher is there. She's a chotoma for me. Teacher Alpna Ghosh is there. So I met her like very long time back. And we both are each other's support system, to be honest. Like, sometimes when I feel low, she's the one who will just, push me, pull me up. And I think I'm also, she always say that, I'm also one of that whenever she feels low, she call me, and then, I'm the one who will just, pull her up and no, you can't do this. And, you're way more stronger than, this is the situation. Yeah. So yeah, I think we like my brother is the main, and then Alpna is there. Wow. So I think we all need this support system sort of a thing in our life. Absolutely. Yeah. Absolutely. So I have a personal question for you. Since I have this sort of curiosity, how songs are like produced, video is shot, and how editing goes on. Can you walk me through the process? Oh, it's a long process. Because when I see any music video, I have this fascination कि अच्छा camera angle कैसे होगा and all that. अच्छा editing कैसे की होगी, how many shots, and क्या नाम है final product तक तो they I think remove भी कर देते होंगे बीच का. So I had that curiosity sort of a. Okay, तो मैं recent का बताती हूँ. I think last one was जिंदगी इतनी मुश्किल नहीं है. So in lockdown मैंने बहुत सारा Netflix देख चुकी थी, बहुत सारा Prime Video देख चुकी थी, बहुत सारे videos देख चुकी थी, बहुत कुछ थक चुकी थी कर के खा के सब कुछ करके. Okay, and finally what happened that one fine day एक composition mind में आया. थोड़ा मिल बांट के कर लो, थोड़ी जिम्मेदारी ले लो, जिंदगी इतनी मुश्किल नहीं है. Okay, I generally say this कि people make life complicated. Honestly, it's not extremely complicated. हमारा behavior बहुत बार उसको complicate कर देता है. तो मैं generally भी पहले से ही बोलती थी, life is not that complicated. Yeah, I mean, people are making it. मैं वैसे भी जो जनरल लाइफ में अपने इम्प्लीमेंट करती थी वही मैंने उसका गाना बनाया. तो अब जब मैंने एक कॉम्पोजिशन आई माइंड में, देन आई टोल्ड दिस टू माय ब्रदर. ओके, जल्दी से ऐसे करके फिर मैंने मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड है, प्लस एट द सेम टाइम बिकॉज़ वी बीन वर्किंग फ्रॉम लास्ट लाइक 4-5 इयर्स, विकास शर्मा उसको बोलेंगे. सो वो है, तो उसको सुनाई एंड ही इज अ फैमिली नाउ. ही बिकेम अ फैमिली एक्चुअली. पहले हम लोग ऑब्वियसली प्रोफेशनली मिले थे, तो उसको सुनाई. फिर उसके बाद में देन ही वाज लाइक या अच्छा ही कॉल्स मी माता जी. ओके, तो बोले माता जी अच्छा है. एंड आई वाज लाइक अच्छा ठीक है, तो करें इसका आगे कुछ. ही वाज लाइक हाँ कर सकते हैं. उसके बाद में मेरे माइंड में शुरू से, क्योंकि मैंने पहले बचपन में इतने एडवर्टीजमेंट्स देखे कि मुझे ना कॉन्सेप्ट्स बहुत जल्दी आ जाते हैं. मतलब मेरे लिए ना जैसे ही मैंने कोई भी गाना तैयार किया तो मेरे लिए कॉन्सेप्ट ऐसे करके आ जाता है. उसका रीजन ये है क्योंकि मैं बचपन में मूवीज से ज्यादा एडवर्टीजमेंट का वेट करती थी. लोग बोलते थे यार ये एडवर्टीजमेंट आ गया, आई वाज लाइक एडवर्टीजमेंट आ गया. ओके, तो ये दोनों रिएक्शंस में बहुत डिफरेंस था. शायद उसकी वजह से मेरे अंदर ना किसी भी चीज को लेके बहुत जल्दी कॉन्सेप्ट आ जाता है.
तो मैंने जैसे ही वो गाना हाफ मेरे ख्याल से शायद कुछ किया मैंने उसका, मतलब वो जो एक ट्यून आती है माइंड में, आपने वॉइस नोट बनाया और उसके बाद में मैंने अपने जो मेरा को म्यूजिक प्रोड्यूसर है उसको भेज दिया। ओके, ही इज अ फ्रेंड, निखिल करके नाम है उसका, वो भी मेरे सॉन्ग्स में 3-4 बार, इट्स अ टीम एक्चुअली, मेरे पास में टीम है। सो इट्स लाइक अभी हम लोग इतने क्लोज नेट पीपल हो चुके हैं कि मतलब एक दूसरे के काम के लिए कोई रिफ्यूज नहीं करता। इट्स अ फैमिली टू बी ऑनेस्ट, अभी बहुत लंबे टाइम से जुड़े, और मुझे ना ऐसा ही एटमॉस्फेयर पसंद होता है जिसमें मतलब मेरे ना रिश्ते टूटते ही नहीं है टू बी ऑनेस्ट। मतलब इट्स वेरी सिंपल कि उनको अपना काम पता है, मुझे मेरा काम पता है, ना मैं उनको नाराज करती हूँ ना वो मुझे नाराज रखते हैं। तो अब इन दैट केस क्या हुआ कि जब मैंने उसको भेजा, ही वाज लाइक या अच्छा एंड ही कॉल्स मी शर्मा जी, ओके शर्मा जी अच्छा बनाया है। तो आई वाज लाइक चल यार इस पे काम करते हैं, ठीक है। तो वो आई थिंक मैंने कुछ कॉम्पोजिशन रेडी की होगी 6 या 7 मई को, ओके। फिर उसके ऊपर काम स्टार्ट होता है, उसके ऊपर जब निखिल बैठता है तो निखिल को टाइम लगेगा क्योंकि निखिल और भी काम कर रहा होता है, तो वो मेरे गाने के लिए टाइम निकाल के आई थिंक कुछ 1-1.5 महीना उसको लगा। लिरिक्स थे इसके विकास के, क्योंकि विकास इज एक्सट्रीमली टैलेंटेड, ही इज मल्टी टैलेंटेड, तो ही विल बी डायरेक्टिंग, ही विल बी इस वाले को तो एडिट भी किया उसने बैठ के, और हिंदी लिरिक्स हैं तो वो लिरिक राइटर भी है, ओके। तो जब फ्रेमिंग तैयार हो जाती है तो फिर उसके बाद में रोल आया विकास का, फिर उसको विकास के पास भेजा गया, फिर फ्रेमिंग के ऊपर विकास ने अपने लिरिक्स सेट किए। लिरिक्स आधे तो मेरे ही थे ऑलमोस्ट, लाइक थोड़ा मिल बांट के कर लो, थोड़ी जिम्मेदारी ले लो, थोड़ा अपना समझ के कर लो, जिंदगी इतनी मुश्किल, ये फ्रेमिंग मेरी थी, बाकी सब कुछ विकास ने किया, ओके। फिर वो धीरे करके जब गाना फिर उसके पास में पहुंचा, फिर रेडी हुआ, फिर मैंने रिकॉर्ड किया, फिर उसको तो वो प्रेपरेशन होते ये हो गया। देन उसके बाद में ओके, तो पहले जो माइंड में जब लॉकडाउन का टाइम था तो उस टाइम पर जो माइंड में चल रहा था कि ओके हम लोग ना कुछ कोलैबोरेशंस करेंगे विद ऑल दीज लाइक जो टीवी स्टार्स या कुछ भी होते हैं, तो ठीक है। अब गाने को रेडी होते ऑलमोस्ट 3 महीना हो चुका था, ओके। 3 महीने में मेरे माइंड से वो कॉन्सेप्ट ही चला गया, 3 महीने में मेरे माइंड में कुछ और कॉन्सेप्ट आ गया। अब मुझे चाहिए थी लोकल पब्लिक, ओके। Then I told this to my director कि सी अब वो कोलैबोरेशन हटाते हैं, अब हम जनरल पब्लिक पकड़ते हैं जो एक्चुअल में बिल्कुल जो एक्चुअली नीडी जो दिख रही है ना, जो आई थिंक जिंदगी में वैसे ही लोग हैं कि मतलब जिन्हें जो खुश भी हैं, जो जनरल पीपल हैं, जो बेचारे अपना लाइफ स्टाइल चलाने की कोशिश कर रहे हैं आफ्टर लॉकडाउन एंड ऑल दैट। फिर हमने उस पर करते एंड ही वाज लाइक या ये ज्यादा अच्छा सूट कर रहा है। मैंने कहा चलिए अब ये वाला करते हैं। तो अब ये धीरे करके वो प्रोसेस में, एंड लकीली उसने वही सब कुछ निकाला जो मुझे चाहिए था। मतलब आई बैडली नीडेड ऑल ऑफ दैट फुटेज। तो सारा का सारा एडिटिंग सब विकास ने किया। आई मीन डायरेक्शन इसमें जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि किसी ने ऐसा शूट किया नहीं। मैं तो चाह भी नहीं रही थी कि मेरी फीचरिंग हो, बट उसको चाहिए था, विकास को चाहिए था कि नहीं तुम एक बार तो कम से कम उसको शूट करो, कुछ भी करो। तो हमने वी वर जस्ट लाइक शॉट इट विद द फोन ओनली, एंड वो भी हमने आई थिंक सी के पास, तब तक थोड़ा सा लॉकडाउन खुल गया था तो सी के पास मैं देखा है स्टार्टिंग में देयर इज दिस स्मॉल गर्ल, बच्ची होती है, देन सी का सीन आता है, देन आपके पीछे भी नॉर्मल पब्लिक है, मैंने देखा था उसको। हाँ, सब बहुत हमने रैंडम रखा क्योंकि हमें बहुत कुछ सब कुछ नॉर्मल चाहिए था। हमें कुछ भी ऐसा नहीं, देखो कुछ एक वीडियोस होते हैं जैसे दैट आई डोंट वांट टू लिव फॉरएवर था, उसमें हमें कुछ अलग चीज चाहिए थी, उसमें हमें कुछ इंटरनेशनल लुक चाहिए थे, इंटरनेशनल चीजें चाहिए थी कि ये ऐसे होना चाहिए, फ्रेमिंग ऐसे आनी चाहिए, ये ऐसा पीछे का बैकग्राउंड। इसमें हमें सब कुछ नॉर्मल चाहिए था, इसमें हमें सब कुछ जनरल पब्लिक, जनरल चीजें, लुक्स पे भी मुझे पता था कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, मुझे अपने आप को बहुत बेसिक रखना है, तो मैंने वही सब कुछ किया। तो ये सब कुछ आई थिंक ये जब गाना रेडी होता है तब ये सब कुछ माइंड में रहता है। एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर मेरा एक एक गाना लोगों के लिए बेबीज होते हैं, मेरा एक एक सॉन्ग मेरे लिए बेबी है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैंने हर गाने पे इतनी मेहनत की होती है, उसके लिए बजटिंग करना, उसके लिए ये करना, बहुत बार गाना बजट से ऊपर चला जाता है। अच्छा, बहुत बार ऐसा भी होता है कि जैसे किसी गाने के लिए हमने शूट कर लिया और वो शूट मुझे बाद में एडिटिंग होकर पसंद नहीं आता, तो पसंद नहीं आता तो इसका मतलब वो सारे पैसे चले जाते हैं, वो जो भी कुछ आपने इतना मेहनत से लगाया होता है वो सब कुछ चला जाता है, क्योंकि आई एम वेरी पर्टिकुलर एंड चूजी अबाउट माई ओन कॉन्टेंट। किसी और की बात ही छोड़ दो, मुझे खुद का कॉन्टेंट पसंद नहीं आता कभी कभी। तो मेरे जैसे क्रिएटिव इंसान के लिए ये सारी चीजें इतनी प्रॉब्लमेटिक होती है। वंस तो आई रिमेम्बर कि हमने कुछ मसूरी में शूट किया, पूरा कास्ट एंड क्रू एंड एवरीथिंग। इट वाज वेरी एक्सपेंसिव शूट। उसके बाद में जब वो 15 दिन के बाद एडिट होकर आया तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। I was like, no, मेरे को खुद ही पसंद नहीं आ रहा, तो मैं इसको टी सीरीज को क्या दूंगी, ऐसे टाइप होता है ना। एंड माय डायरेक्टर वाज लाइक, यार हमने इतने मैंने कहा हाँ ऑफ कोर्स, क्योंकि मेरी सेविंग है, मेरी सारी चीजें, मुझसे ज्यादा कौन अच्छे से जानता है कि हमने कितने पैसे लगाए, लेकिन मुझे पसंद ही नहीं आ रहा।
अब मैं क्या करूँ इसमें? He was like कि यार you're finicky, हाँ तुम्हारा कुछ नहीं होगा। मैंने कहा but see it's a simple thing, आपको जब तक खुद का प्रोडक्ट समझ नहीं आएगा दूसरों को कैसे आपका प्रोडक्ट अच्छा लगेगा? It's simple, no? Exactly. So बस वो वेस्ट हो गया, वो वेस्ट हो गया। अभी उसको फिर से रीशूट करना पड़ेगा, फिर से कुछ करेंगे उसका, बट या सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो बहुत रिस्क लेने पड़ते हैं, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीजों के लिए मलाल होता है, बहुत सारी चीजों के लिए लगता है ओ गॉड इतनी मेहनत की, इतना सब कुछ वेस्ट हो गया। तो बहुत सारी चीजें हैं यार, इट्स नॉट दैट इजी, इट साउंड्स, आई थिंक मेरी स्माइल और मेरी बातों पे मत जाना, इट्स सो कॉम्प्लिकेटेड, इट्स नॉट दैट इजी, ओके। बहुत सारे लोग इस चीज को डिप्रेशन में ले जाते हैं, इट्स जस्ट माय ओन एटीट्यूड के जो मैं इन सारी बातों को बड़ा नहीं बनाती हूँ, और मेरे लिए शायद वो पार्ट एंड पार्सल हो, क्योंकि सी मैं इसलिए बड़ा नहीं बना रही हूँ क्योंकि आई केम फ्रॉम माइनस, ओके। जब आप माइनस से आते हो तो आपके बेंचमार्क नहीं होते हैं, फिर ये नहीं है कि नहीं आपको तो इतना करना है और ऐसे है वैसे, आप जो भी कर रहे हो वो प्लस पॉइंट पे है, तो सब कुछ अच्छा है यार सब, मतलब वो देखो जहां से स्टार्ट किया था वहां से तो आप बहुत ऊपर हो, ठीक है, तो वो आपके पास कुछ खोने के लिए ही नहीं है ना। मेरे पास में कुछ, अगर मैं लुक बैक करूंगी तो भी मैं पहले से 1000 टाइम्स बेटर हूँ जहां से मैं आई थी, तो फिर अब मैं उसमें ये यू नो वो बनाकर बैठूं कि नहीं भगवान ने तो ये कर दिया, ये चीज गलत हो गई, ऐसे हो गया, तो देयर इज नो पॉइंट। सो जस्ट कीप एवरीथिंग वेरी पॉजिटिव, कीप योर सराउंडिंग्स पॉजिटिव, सब कुछ पॉजिटिव रखो, अच्छा ही अच्छा होगा। इट्स सिंपल।